Hello dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. So my name is Aditi children, and as you can see on your screen, these are the courses that we are offering. So basically we are teaching 6 to 8 Olympiads, NTSC, NSC, JS and PRMO, and 6 to 10 school level examinations. And so lecture for today is NMTC Primary, and which is for 5th and 6th standard. And जो ये lecture चल रहा है that is for miscellaneous में, the last chapter basically हम लोग पढ़ रहे हैं miscellaneous का. And why miscellaneous? Because we have studied about calendar. इसी lecture के अंदर हम लोग clock के बारे में भी पढ़ रहे होंगे. Clock also we have studied, and थोड़ा सा clock अभी आज बाकी है, that we'll do. Figure counting आज हम लोग करने वाले हैं. So this is the amazing team children. हम सबके lectures available हैं talking textbook पर, and different playlist बनी हुई है, आप go through कर सकते हैं सबके lectures में. And this is a brief about me children. My name is Aditi and I'm taking NMTC Primary, Sub Junior and 6 to 8 Mathematics. ये हम लोग का Telegram channel है children, according to different classes. So as you can see, मतलब अलग अलग classes के लिए अलग अलग Telegram channel है. You can join us there so that you'll be updated for the regular courses. मतलब जो regular time table चल रहा है, जो भी classes हैं उसके लिए आपको update मिलती रहेगी, and आपका कोई भी lecture इस तरह से miss नहीं होगा, because you will get the notifications for it. This is our website children, talkingtextbooks.in. यहाँ पर आपको जो packages हैं वो दिख जाएंगे, and these packages are again children, आप देख सकते हैं 9000 is the highest price. फिर उसमें भी reduction हो जाएगा किस तरह से कि if when you use my code AV live, you can see it here, when you use my code AV live, तो यहाँ पे 30% का आपको discount मिल जाएगा. This will be for 6300, right? So 9000 का पूरा complete package है, that will be for 6300, and that is the complete package. So you get the study material and the test series for whole year. And again, bi-weekly quizzes are there children, which you can attempt in talking textbooks. जो हम लोग का website है, वहीं पर ही आप लोग इसे follow कर सकते हैं, वहीं पर ही आप लोग attempt कर सकते हैं इसको. And the second package that you can see here is of test series. Like if you do not require the study material, then you can opt for the test series. And again, that will be also for the whole year. Syllabus predefined होगा, part test होंगे, cumulative test होंगे. And children, यहाँ पे part क्या है कि जो like 6300 का जो पैकेज है, इसमें जितने भी इंक्लूजन्स हैं वो सब आप देख ही सकते हैं. इसके अंदर होमवर्क सबमिशन है, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स हैं, वो सब कुछ इंक्लूजन है ही से इसके अंदर. डिफरेंट ये जो डिफरेंट पेमेंट मोड्स है, यू कैन सी स्टिल कुछ क्वेरीज रह जाती हैं. सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111. तो इस नंबर पे कॉल करके आप आपकी क्वेरीज को लाइक यू कैन हैव योर डाउट्स क्लियर हियर. सो लेट्स स्टार्ट विद अ लेक्चर फॉर टुडे चिल्ड्रन. ये सब कुछ कैलेंडर वगैरह हम लोग पढ़ चुके थे. वी स्टडीड अबाउट कैलेंडर एंड वी स्टडीड अबाउट क्लॉक एज वेल. क्लॉक भी हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम. एंड आज भी हमें क्लॉक का थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है, एंड देन वी बी स्टडिंग अबाउट काउंटिंग फिगर्स, राइट चिल्ड्रन. तो फिगर काउंटिंग आज हम लोग करेंगे, एंड क्लॉक का थोड़ा सा पार्ट आज हम कर रहे होंगे. क्या चिल्ड्रन? सो क्लॉक में क्या बचा था, लेट मी राइट इट फर्स्ट. जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन. सो क्लॉक के अंदर क्या कुछ पार्ट बच रहा था चिल्ड्रन? हम लोगों ने लास्ट कहाँ तक कर लिया था? सो वी स्टडीड अबाउट फाइंडिंग एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड. हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, एंड आई ऑल्सो टोल्ड कि ये एक फॉर्मूला होता है जिससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं. जब भी वो एंगल पूछ रहा है तो आप डायरेक्टली इसके अंदर लिख करके आप पूछ सकते हैं, राइट? मैं निकाल सकते हैं, राइट? सो लेट अस गो फर्दर. अब इसके अंदर इफ वी टॉक अबाउट व्हेन, सो द टॉपिक सेज व्हेन clock hands are opposite to each other. When clock hands are opposite to each other. ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे. जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, मैं समझाती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. सो क्लॉक हैंड्स आर ऑपोजिट मीन्स व्हाट? लेट मी ड्रॉ a clock first.
क्लॉक ड्रॉ किया हमने, इसको थोड़ा सा और प्रॉपर बना देते हैं। ठीक है, एंड लेट्स ड्रॉ दिस। ऑलराइट, सो अब इसके अंदर दिस इज 12, 1, 11, 10, 2, 9, 3, 4, 8, 5, 7 एंड 6। ठीक है, अब इसके अंदर वो बोल रहा है कि व्हेन क्लॉक हैंड्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। यहाँ पे हम मिनट हैंड और आवर हैंड के बारे में बात करते हैं। तो ऑपोजिट टू ईच अदर होने का मतलब क्या चिल्ड्रन? फॉर एग्जाम्पल मिनट हैंड अगर इस साइड है तो ये आवर हैंड रहा, ठीक है। या अगर मैं इस तरह से बताऊं कि माई आवर हैंड इज हियर एंड माई मिनट हैंड इज हियर, राइट। तो ये दोनों आपस में क्या है चिल्ड्रन? इन दोनों ही जो लाइक अलग अलग मैंने बताया, एक 6 PM पर या 6 o'clock पर, और एक आप बोल सकते हैं 2:45 पर, राइट, 2:45 पर। सो यहाँ पर बेसिकली चिल्ड्रन क्या हो रहा है, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना चिल्ड्रन, वो कितना है? 180 डिग्री का। दोनों जो हैंड्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, और जो एंगल बन रहा है चिल्ड्रन वो कितने का है? जो एंगल बन रहा है वो कितने का है चिल्ड्रन? 180 डिग्री, राइट। सो अंडरस्टैंड दिस, व्हेन क्लॉक हैंड्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, या हम ये कह सकते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द एंगल बिटवीन clock hands is 180 डिग्री, ठीक है। इसका ये भी मीनिंग हुआ, ऑपोजिट है इसका मतलब 180 डिग्री पर है। तो अभी कितनी बार अकर होता है चिल्ड्रन? हाउ मेनी टाइम्स डज इट अकर? कितनी बार अकर होता है ये? सो सी, दे पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ओनली 11 टाइम्स इन 12 hours, राइट। They point in opposite direction, or they are in opposite direction. They are in opposite direction for only 11 times. For only 11 times in 12 hours. In 12 hours मतलब 12 घंटे में। लाइक जैसे आप ये मान लो कि दिन के 12 से रात के 12 तक, तो वहां पे क्या हो रहा है चिल्ड्रन? दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर ओनली 11 टाइम्स। 12 आवर्स के अंदर सिर्फ 11 टाइम्स ही ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, यानी कि 180 डिग्री पर होंगे। क्यों? इसका रीजन मैं बताती हूँ। वाई? बिकॉज बिटवीन 5 PM एंड 7 PM, बिटवीन 5 PM या 5 o'clock मान लो, 5 PM रहने दो, इसे 5 o'clock मान लो, बिकॉज बिटवीन 5 o'clock एंड 7 o'clock they point in opposite direction. They point in opposite direction. They point in opposite direction only at 6 o'clock children. यानी कि मैं like what am I trying to tell you is that 5 से 7 के बीच में, see 5 से 7 के बीच में सिर्फ एक बार ऐसा होता है चिल्ड्रन, सिर्फ एक बार ऐसा होता है जब ये ऑपोजिट होते हैं। अदरवाइज हर एक आर में ये कहीं ना कहीं पर ऑपोजिट हो रहे होते हैं, राइट। बट देन 5 से 7 के बीच में, 5 o'clock से 7 o'clock के बीच में सिर्फ एक बार ऐसा होता है जब इनमें 180 डिग्री होता है, दैट इज एट 6 o'clock, राइट। इसीलिए ये ओनली 11 टाइम्स होता है। तो फिर अब इससे चिल्ड्रन मैं क्या बोल सकती हूँ? व्हाट कैन आई रिड्यूस फ्रॉम दिस? दैट इन 24 hours इन अ डे, या मैं कह सकती हूँ 24 hours, they are in opposite direction. How many times? They are
in opposite direction for how many times children? For 22 times. ठीक है. Why? देखो 12 आवर्स में, अगर 12 आवर्स में 11 टाइम्स हो रहा है तो 24 आवर्स में कितने टाइम होगा चिल्ड्रन? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय 2. मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 22 टाइम्स. क्लियर है चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हेन द एंगल, व्हेन क्लॉक हैंड्स आर 90 डिग्री टू ईच अदर. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं when the clock hands are 90 degree to each other. ठीक. clock hands are 90 degree to each other. तो वैसा कितनी बार होता है चिल्ड्रन? Just a second. Let me draw a clock. ठीक है. अब इसके अंदर दिस इज 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. ऑलराइट. अब इसके अंदर क्या हो रहा है चिल्ड्रन? यहाँ पर मैंने मान लो दिस इज माई आर हैंड एंड दिस इज माई मिनट हैंड. राइट. तो अब इनके बीच में क्या क्या एंगल हो रहा है चिल्ड्रन? ऑब्वियसली 90 डिग्रीज. 90 डिग्रीज का एंगल आ रहा है. तो इस तरह से चिल्ड्रन कितनी बार क्लॉक के अंदर 90 डिग्रीज के एंगल बनते हैं, ये हमको देखना है. राइट. तो इसका ऑब्वियसली सर्टेन फॉर्मूला होता है जिससे ये सब डिराइव होता है. सो व्हाट कैन आई से? इन ईच आर हैज 2 occurrences children. 2 occurrences of 90 degrees. क्लियर चिल्ड्रन? मतलब हर एक घंटे में 2 बार, हर एक 1 आवर में 2 times 90 डिग्रीज होता है. 2 times 90 डिग्री होता है चिल्ड्रन इन एवरी आवर. राइट. बट इंपॉर्टेंट बात क्या है? आवर्स बिटवीन आप ये कह सकते हो 2 to 4, मतलब 2 o'clock से 4 o'clock के बीच में, एंड इम्पॉर्टेंटली 8 o'clock to 10 o'clock के बीच में अक्रेंसेस सिर्फ कितनी बार होती है चिल्ड्रन? 1 बार होती है. हैज मतलब 1 टाइम होती है. कहने का मतलब मैं अभी समझाती हूँ. देखो, has occurrence of 90 degrees only 3 times. कैसे? मैं 3 टाइम्स क्या बोल रही हूँ मैं समझाती हूँ आपको भी. जैसे देखो चिल्ड्रन, मैं क्या बोल रही हूँ कि हर एक आवर के अंदर, जैसे मान लो 12 से लेकर 1 तक में देखें तो 2 times 90 डिग्री एंगल बनता है. 2 times 90 डिग्री एंगल बनता है. वो कुछ ना कुछ एंगल पे बनता है. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ. राइट. तो वो आप निकाल भी सकते हो खुद से. सो 2 times कितना निकलता है भाई? कैसे निकालोगे? देखो, थीटा इक्वल्स टू, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको यहाँ पर चिल्ड्रन, थीटा इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर. तो यहाँ पे बस डाल सकते हो. थीटा कितना है आपका? थीटा 90 डिग्री है. मिनट हमें पता नहीं, आर हमें पता है 12. राइट. तो इस तरह से आप हर एक आर के अंदर डाल करके निकाल सकते हो. दैट इज नॉट एन इशू. तो अब जैसे मैं बोल रही हूँ कि हर एक आर के अंदर चिल्ड्रन, हर एक आर के अंदर 2 times 90 डिग्री आ रहे हैं. राइट. सो इस हिसाब से चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कि देखो, अगर मैं बात करूँ 12 से 2 की, अगर मैं बात करूँ 12 से 2 की, मतलब ये 2 o'clock है. ठीक है. तो अगर
1 आवर में अगर 2 टाइम्स 90 डिग्री आ रहा है चिल्ड्रन, तो 2 आवर्स में कितना आएगा? 2 आवर्स में कितने टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स, राइट। 2 आवर्स में कितना आएगा चिल्ड्रन? 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स आना चाहिए। अब ये क्या बोल रहे हैं? 2 to 4 की बात जब हो रही है चिल्ड्रन, 2 to 4 में क्या बोल रहा है? यानी कि यहां से लेकर यहां तक में, राइट, सिर्फ 3 टाइम्स ही अकरेंस होती है चिल्ड्रन, 4 टाइम्स नहीं हो पाती है, ठीक है। 2 से लेकर 4 तक में, सिमिलरली 8 से लेकर 10 तक में, दिस इज 10 एंड दिस इज 8। तो यहां से यहां तक में भी चिल्ड्रन सिर्फ 3 टाइम्स ही 90 डिग्री आएगा, 4 टाइम्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक ये जो 3 o'clock वाला है ना चिल्ड्रन, ये जो 3 o'clock वाला है, ये दोनों के लिए कॉमन है। मतलब 2 से 3 वाले में भी 3 कॉमन है, और 3 से 4 वाले में भी ये जो 3 बज रही है ये कॉमन है, ठीक है चिल्ड्रन, समझ में आ रहा है? 2 से 3 में 3 कॉमन है, 3 से 4 में भी 3 कॉमन है, इसीलिए 1 + 1 + 1 इस तरह से 3 टाइम्स आएगा। सेम इज द केस हियर एज वेल। यहाँ पर भी जैसे मैं दूसरे पेन से आपको बता देती हूँ, लेट मी यूज दिस। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी हियर, ठीक है, एट दिस टाइम। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा होगा चलो, 9 o'clock पे भी क्या हो रहा है? 9 o'clock पे भी 90 डिग्री बन रहा है। तो दिस इज कॉमन बिटवीन 10 to 9। 10 to 9 के बीच में एक ये कॉमन है, और 9 to 8 के बीच में भी चिल्ड्रन ये कॉमन है, राइट। तो इसीलिए ये कितना हो गया? एक बार प्लस 1 टाइम 9 में, प्लस 1 टाइम यहाँ पर। तो इसलिए ओवरऑल एक चांस यहाँ पे कट हो गया, एक चांस यहाँ पर क्या हो गया? कट हो गया। तो अदरवाइज तो देखो चिल्ड्रन, 1 घंटे में अगर 2 बार हो रहा है तो 2 घंटे में 4 बार हो रहा है। तो उस हिसाब से फिर 12 आवर्स में कितना होना चाहिए था? 12 आवर्स में होना चाहिए था कितना? 24 टाइम्स। 24 टाइम्स होना चाहिए था, राइट, बट होता नहीं है चिल्ड्रन। 24 टाइम्स होगा नहीं, कितने टाइम्स होगा? 24 टाइम्स नहीं होगा, 22 टाइम्स होगा। 22 टाइम्स क्यों होगा? क्योंकि एक तो यहाँ का कैंसिल हो गया और एक यहाँ का कैंसिल हो गया, राइट। यानी कि 2 से 4 में और 10 से 8 में एक बार ही मतलब लाइक 3 टाइम्स ही आ रहा है। तो इसका मतलब एक टाइम वो कट हो गया, तो 22 टाइम्स रह गया। सो हम क्या बोल सकते हैं फिर इस हिसाब से कि इन 12 आवर्स इट अकर्स, मतलब फिर मैं क्या बोल दूंगी इससे? इन 12 आवर्स it occurs 22 times, ठीक है, and therefore in a day, या आप बोल सकते हो 24 hours, it occurs how many times children? It occurs obviously 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 44 times, 44 times। आई चीज समझ में चिल्ड्रन? नेक्स्ट करें हम, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं अपन, when clock hands coincide with each other, when clock hands coincide with each other, right? When clock hands coincide with each other, तो उसके अंदर क्या हो रहा है चिल्ड्रन? देखो, लेट मी ड्रॉ, मैं एक बनाती हूँ। ठीक, so this is 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 and 11, ठीक, कोइंसाइड कर रहे हैं। मतलब लेट अस से मेरा जो मिनट हैंड है वो लेट अस से इट इज हियर, ठीक है। और सिमिलरली जो मेरा आर हैंड है
that is also coinciding on this, right? So यहाँ पे basically क्या हो रहा है, 3:15 हो रही है children, 3:15. तो minute hand and hour hand both are coinciding. coincide करने का मतलब एक के ऊपर एक है. तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल कितना हुआ children? What is the angle between these two? So angle between minute and hour hand is how much children? 0 degrees. मिनट और आवर हैंड के बीच में जो टाइम हुआ, जो एंगल हुआ, सॉरी, वो कितना हुआ चिल्ड्रन? दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच चिल्ड्रन? दैट इज गोइंग टू बी 0 डिग्रीज. मतलब दोनों तरीके से आ सकता है, इसके अंदर दोनों तरीके से आ सकता है. आप कह सकते हैं कि भाई ये मतलब कोइंसाइड कर रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं. ओवरलैप कर रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं. 0 डिग्री है, ऐसा भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो अब ये कितने टाइम करेगा चिल्ड्रन? लेट मी टेल यू. सी, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक ओवरलैप 22 टाइम्स अ डे. द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक ओवरलैप बोल लो, कोइंसाइड बोल लो, ओवरलैप 22 टाइम्स इन अ डे. इन अ डे का मतलब 24 hours, right? क्यों? As it coincides only one time at 12 between 11 to 1. मतलब मैं क्या कहना चाह रही चिल्ड्रन कि 11 से 1 के बीच में, this is 11, this is 1. So यहाँ से यहाँ तक के बीच में चिल्ड्रन ये सिर्फ एक बार, only one time coincide करता है. That is at 12 o'clock, right? That is at 12 o'clock it coincides. मतलब यहाँ पे coincide किया ये. Right? So it coincides only once between 11 to 1 p.m. That is at 12 o'clock. So that is why हम क्या कह सकते हैं? Let us write that down. That it coincides only once between 11 o'clock to 1 o'clock at 12 o'clock. ठीक है, सिर्फ 12 बजे ही ये ओवरलैप करता है इन दोनों के बीच में, 11 से 1 के बीच में, इन 2 घंटे के बीच में. सो व्हाट कैन आई से चिल्ड्रन बाय दैट? In 12 hours it coincides how many times? It coincides 11 times. Clear children? 24 hours में 22 times हो गया, ये लिख दिया. 24 hours is 22 times. 2 से मल्टीप्लाई कर दो. Is this clear children? I hope it is clear. अब इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं children. Let's do few questions. Question says, from Monday 3 p.m. to Tuesday 6 p.m. How many times did the minute and hour hand? How many times did the minute and hour hand? Did the minute and hour hand coincides? From Monday 3 p.m. to Tuesday 6 p.m. how many times did the minute and hour hand coincides? Right? So let's do this question children. देखो, from Monday 3 p.m. से Tuesday 3 p.m. Monday
3 PM से ट्यूसडे 3 PM। चिल्ड्रन कितने आवर्स हो गए? विल बी 24 आवर्स। 3 बजे से आज की 3 बजे या मंडे की 3 बजे से ट्यूसडे की 3 बजे तक कितने आवर्स हो गए चिल्ड्रन? 24 आवर्स हो गए, राइट। एंड वी नो दैट minute hand and hour hand coincides how many times? In 24 hours, minute hand and hour hand coincides how many times? Coincides 22 times। भाई कितनी बार कोइंसाइड करता है? 22 बार कोइंसाइड करते हैं। यानी कि ट्यूसडे की 3 बजे तक, ट्यूसडे की 3 PM तक वो कितनी बार कोइंसाइड कर चुके हैं चिल्ड्रन? 22 टाइम्स कोइंसाइड कर रखे हैं, ठीक। अब बिटवीन 3 to 6 PM, 3 से 6 बजे तक देयर विल बी 3 more टाइम्स। क्यों? देखो कोइंसाइड का अपन ने कहाँ पढ़ा है? कोइंसाइड सो ट्यूसडे 3 PM से 6 PM के बीच में चिल्ड्रन कितने आवर्स होते हैं? 3 आवर्स। एंड वी नो कि एवरी 1 आवर में 1 टाइम कोइंसाइड करता है ये। बस किस टाइम नहीं करता है? जिस टाइम पे बिटवीन 11 to 12 होता है, राइट। 11 से 12 के बीच में कोइंसाइड, मतलब 11 से 1 के बीच में एक बार कोइंसाइड करता है, बाकी तो हर एक आवर में कर रहा होता है। सो 3 to 6 PM में 3 आवर्स करा, 22 टाइम्स वो ऑलरेडी कर चुका था, फिर 3 आवर्स में 3 टाइम्स और कोइंसाइड कर लिया, 3 टाइम्स और कोइंसाइड कर लिया। सो टोटल कितना हो गया चिल्ड्रन? टोटल कितना हो गया? 22 टाइम्स तो वो 24 आवर्स में कर चुका था, फिर 3 to 6 अगले 3 आवर्स में वो कितने टाइम और किया? 3 टाइम्स। सो टोटल 25 टाइम्स कोइंसाइड हो गया। क्लियर चिल्ड्रन? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट करें चिल्ड्रन। So next is question says from 1 PM to 6 PM on a day, how many times does 90-degree angle occur? How many times 90-degree occur? ठीक, 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री एंगल अकर बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो नाउ चिल्ड्रन, सी 1 आवर के अंदर चिल्ड्रन कितनी बार 90 डिग्री बन रहा है? 2 टाइम्स। वी नो एवरी 1 आवर के अंदर 2 टाइम्स 90 डिग्री बन रहा है, राइट। बट इफ यू रिमेंबर, तो इस हिसाब से देखो 1 PM से लेकर 6 PM तक में कितने आवर्स हो गए चिल्ड्रन? कितने आवर्स हो गए? 5 आवर्स हो गए, राइट। 1 से लेकर 6 PM तक में 5 आवर्स हो गए, तो 5 आवर्स हो गए मतलब 5 into 2 10 टाइम्स हो जाना चाहिए, राइट। बट इफ यू रिमेंबर अभी हमने पढ़ा क्या कि it occurs only 3 times between 2 to 4, between 2 to 4, right? It occurs only 3 times between 2 to 4। तो फिर मैं क्या कर लूंगी चिल्ड्रन, यानी कि इन 2 घंटे के अंदर, देखो
1 से लेकर 2 तक में, 1 से लेकर 2 PM तक में कितनी बार अकर हुआ? 2 टाइम्स. देन 2 से 4 में, 2 से 4 PM में इट अकर्ड 3 टाइम्स. एंड देन 4 to 6 it occurs. 4 to 6 is 4, right? 4 times. आया समझ में? आई होप आई एम मेकिंग सेंस चिल्ड्रन. सो टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 9 टाइम्स. टोटल कितना हो गया चिल्ड्रन? 9 टाइम्स. क्लियर? नेक्स्ट करते हैं ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं चिल्ड्रन. So my next question is, how many times the needles are perpendicular to each other from 4 PM to 11 PM. 4 PM से 11 PM के बीच में. Now there is no need for me to make the like clock, because you all know it very well, right? So total 4 PM to 11 PM में कितने hours हो रहे हैं children? It is 6 to 12 is 6 and 1 5. So there are in total 7 hours, right? Total hours कितने हो रहे हैं children? Total hours is equals to 7. तो अब इस हिसाब से कितनी बार होना चाहिए children? परपेंडिकुलर का अभी हमने पढ़ा कि 1 hour के अंदर how many times it occurs? 2 times. 1 hour में it occurs 2 times twice. तो इसका मतलब चिल्ड्रन 7 hours में कितना हो जाना चाहिए? 14 टाइम्स. 7 hours में 14 टाइम्स हो जाना चाहिए. बट देन अगेन it occurs only 3 times between 8 to 10, between 8 PM to 10 PM, right? True. It occurs only 3 times between 8 PM to 2 PM. So according to this, see, 4 to 8 PM. So there are 4 hours. 4 into 2 means 8 times ही हो गया, right? Then 8 to 10 PM. It is coming only 3 times. It is occurring only 3 times. Then 10 to 11. There is 1 hour. So that means 2 times. So total कितना हो गया children? 13 times. Is this clear children? Am I making sense to you all? Is this clear? Is this clear children? I hope it is clear. Okay. Next thing that we are going to do is to find the time when angle is given. ठीक है? Next thing जो हम करने वाले हैं वो क्या है children? Find time. To find time when angle is given. When angle is given to us. ठीक है क्या children? Let's do 2-3 questions. Means 2 questions we'll do on this. चलो, let's see to it. Just a second. So here it says, question हमारे पास इससे question से ही हम डायरेक्ट समझ लेंगे. At what time between
7 o'clock and 8 o'clock are the hands at 45 degree? Are the hands at 45 degrees? राइट, ये हमें जानना है कि भाई 45 डिग्रीज कहाँ कहाँ होता है. ठीक, सो अब चिल्ड्रन समझना. सी, एंगल बिटवीन टू नंबर्स क्या था? इफ यू रिमेंबर, मैंने शुरुआत में बताया था कि एंगल्स बिटवीन टू नंबर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मान लो, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कितना था? 30 डिग्रीज, राइट. सो अब अगर मैं इसे इस तरह से देखूं चिल्ड्रन, टोटल एंगल कितना हो गया? देखो, टोटल एंगल कम्स आउट टू बी 7 into 30. That is 210 degrees. देखो, like let me explain it to you. Let me draw it. देखो, मुझे पता करना है. This is 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. सो ये पूछ रहा है कि 7 से 8 के बीच में 45 डिग्रीज कब बनेगा. ठीक है, सो दिस इज माय 7 o'clock. राइट चिल्ड्रन, दिस इज माय 7 o'clock एंड दिस समवेयर इज 8 o'clock. तब यहाँ पे मुझे देखना है कि 45 डिग्रीज कब बन सकता है. सो अंडरस्टैंड दिस चिल्ड्रन. देखो, यहाँ से यहाँ तक तो ये एंगल कितना हो गया? दिस इज हाउ मच चिल्ड्रन? 180 डिग्रीज. अब उसके अंदर अगर मैं और ऐड कर देती हूँ, लेट्स से, जस्ट अ सेकंड चिल्ड्रन. सो नाउ अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, 180 डिग्रीज तो यहाँ तक हो गया. अब इसके अंदर मुझे और एक्स्ट्रा 180 डिग्रीज यहाँ तक हो गया. ठीक है, सिक्स टू सेवन अगर मैं देखूं तो 6 to 7 इज हाउ मच? 30 डिग्रीज. यहाँ से यहाँ तक 6 से 7 बजे तक कितना होता है? 30 डिग्रीज होता है. राइट, यहाँ तक तो हम आ गए, स्ट्रेट लाइन में आ गए. अब 6 to 7 है 30 डिग्रीज, और क्योंकि वो 7 से 8 के बीच में पूछ रहा है चिल्ड्रन, इट इज आस्किंग बिटवीन 7 to 8 PM, और 6 to 7 में 30 डिग्रीज होता है. अब 30 डिग्रीज में प्लस 15 डिग्री और करना है मुझे, प्लस 15 डिग्री और करना है. तो ये प्लस 15 डिग्री करते कितना हो जाएगा? 45 डिग्रीज. तो 15 डिग्री और कहाँ आएगा? 15 डिग्री 7:30 बजे करीब आएगा. 7:30 बजे करीब आएगा चिल्ड्रन. राइट, क्योंकि 6 से 7, भाई 6 बज रही है, 6 से 7 में कितना होता है? 30 डिग्री हुआ. और क्योंकि वो 7 से 8 के बीच में पूछ रहा है, इसलिए थोड़ा सा और आगे मैं 7 से 8 के बीच में भी ले सकती थी, पर फिर 45 डिग्रीज कहाँ आता चिल्ड्रन? 8 से 9 के बीच में आता, क्योंकि एक्स्ट्रा 15 डिग्री मुझे कहाँ मिलता? 8 के ऊपर. पर मुझे तो 7 से 8 के बीच में चाहिए था. ठीक, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 7 से थोड़ा सा आगे, दैट इज 7:30, मतलब 7:30 बजे, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में 30 डिग्री होता है, तो मतलब 7:30 बजे क्या होगा? एक्स्ट्रा 15 डिग्री और मिल जाएगा मुझे. तो 45 डिग्रीज एक तो मुझे कहाँ मिल जाएगा चिल्ड्रन? एक तो मुझे मिल जाएगा 7:30 पर. ठीक है, एक तो मुझे मिल जाएगा 7:30 पर, और दूसरा थोड़ा सा ट्रिकी होगा, मतलब एग्जैक्ट अपने को 45 या इस तरह से नहीं मिलेगा,
किस तरह से मिलेगा देखो मैं बताती हूँ। दूसरा जो होगा ना चिल्ड्रन वो तकरीबन इस तरह से मिलेगा अपने को, जैसे 7, आप ये मान लो कि करीबन यहाँ होगा ये, ठीक है, यहाँ पे, और आप ये मान लो थोड़ा सा इससे आगे, 9 से आगे, हाँ थोड़ा यहाँ पर, मतलब आप ये मान सकते हो कि 746 से थोड़ा सा और ऊपर, मतलब लगभग 746 से थोड़ा सा और ऊपर, 746 और 747 के बीच में होगा जो दूसरा टाइम आएगा, ठीक है। तो अब वो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं बोल सकती हूँ कि 746 से 747 के बीच में आएगा ये टाइम, राइट। तो अब इसके अंदर अपने को क्या ऑप्शन निकालना है, जैसे ऑप्शन दे रखे होंगे ना अपने को ABCD, तो जो भी ऑप्शन क्लोजेस्ट होगा, जैसे एक दिया हुआ है 730, एक दिया हुआ है 745, एक दिया हुआ है 760, मतलब 716, 750, और एक दिया हुआ है 715, ठीक है। तो क्लोजेस्ट है 730, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? अब देखो ये जो सेकंड वाला है इसको और एग्जैक्ट अपन निकाल सकते हैं, किस तरह से, वही फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर, थीटा इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर, राइट। तो अब इसमें मिनट हमें निकालने हैं, मिनट हमें नहीं पता, आर कितना है, आर इज हाउ मच चिल्ड्रन, 7, आर तो हमें दे रखा है 7, और थीटा कितना है चिल्ड्रन, थीटा इज ±45, ±45 क्यों, देखो या तो इस आर हैंड, या तो जो मिनट हैंड है ना चिल्ड्रन वो आर हैंड से पीछे होगा तो माइनस में, और अगर आगे बढ़ गया जैसे इस केस में तो प्लस में हो जाएगा। ये मैंने समझाया था आपको कि मिनट हैंड अगर अहेड है आर हैंड से तो पॉजिटिव थीटा होगा, पीछे है तो नेगेटिव थीटा होगा, इतना ही डिफरेंस था। तो अब अगर इसको अपन एक बार +45 और एक बार -45 लगा के देखेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट टाइम करती हूँ, सो लेट्स से आई टुक -45, so -45 degrees equals to 11/2 into minute, we do not know, minus 30 into 7. So this gives me how much, -45 plus 210 equals to 11/2 minute. So minute यहाँ पे कितने आ गए चिल्ड्रन, मिनट यहाँ पर मुझे मिल गए 30, तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम मेरा 730 आ गया, विच इज दिस। अब सेकेंड को कैलकुलेट करते हैं अपन, सेकेंड वाला टाइम कैलकुलेट करते हैं जब हम +45 डिग्रीज दे रहे हैं। तो इसमें भी वही 11/2 इंटू मिनट हमें लेने -30 इंटू 7, राइट। तो ये कितना मिल गया मुझे, मिनट विल बी इक्वल टू 510/11, so that comes out to be somewhat 46 4/11 children, 46 4/11। तो मतलब टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया somewhat 7:46 and 4/11 minutes, ये दूसरा मिनट आ गया, ठीक। तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन में है वो 730 क्लोजेस्ट, मतलब एग्जैक्ट आंसर आ ही रहा है तो वही सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 745, तो वो सही नहीं क्योंकि 746 4/11 समथिंग आ रहा है। So this is how you will mark the answer. Clear children? I hope it is clear. So let's say, let me take one more example. अब इसको मैं solve नहीं करूँगी, I'll just tell you the trick for it. Right? So the question says, at what time does 90 degree occurs between 5:30 to 6, between 5:30 to 6 o'clock, ठीक। अब इसके लिए वही सेम चीज करनी है चिल्ड्रन, यहाँ पर भी सेम चीज होगी, दो टाइम निकलेंगे यहाँ पर भी, क्योंकि एंगल
दो तरीके से, अब देखो यू रिमेंबर कि 90 डिग्री ट्वाइस आता है, 2 टाइम्स आता है, राइट? तो एक बार अहेड होगा, एक बार बिफोर होगा, तो यानी कि प्लस माइनस थीटा होगा, प्लस माइनस थीटा होगा इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर, राइट? अब इसके अंदर तो टाइम मुझे 5:30 to 6 दे रखा है, 5:30 to 6, तो क्या लोगे? देखो अब इसके अंदर मिनट वी डू नॉट नो, मिनट हम जानते नहीं, मिनट हमें निकालना है ऑब्वियसली। डिग्री हमें पता है 90 डिग्रीज है, मिनट वी डू नॉट नो दैट वी आर सपोज टू फाइंड। आर क्या लेंगे अपन? आर लेंगे 5 चिल्ड्रन, आर लेंगे 5 बिकॉज एक्चुअली इट इज बिटवीन 5 to 6 ओनली ना। 5:30 मतलब क्या? 5 से 6 के बीच में ऑब्वियसली, तो इसलिए 5 के बाद कुछ भी मिनट आ जाएगा, है ना? तो दिस इज गोइंग टू बी 5 आर जो होगा एंड दिस मिनट जो हमें फाइंड करना है, राइट चिल्ड्रन? सो दिस वाज इट अबाउट द क्लॉक। अब हम थोड़ा सा फिगर काउंटिंग देख लेते हैं चिल्ड्रन। लेट्स सी फॉर फिगर काउंटिंग। सो फिगर काउंटिंग में बेसिकली हमें काउंट करना होता है। सो मैं एक आध कुछ इजी से क्वेश्चन अभी ले लेती हूँ एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग और थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे ऑन फिगर काउंटिंग एक्सेल। सो एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन सेज फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फाइंड द minimum number of straight lines required to make the given figure, required to make the figure। ठीक है, अब लेट मी मेक द फिगर। दो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट देन प्लीज अज्यूम दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन। This is the thing, then this is the thing, then this is the thing. Please assume that it is a straight line, though it might not look like, but then it is. Here, then let's connect this, this, and here as well, and right. This will also be connected, and this will also be connected. Alright, so this is the figure and basically we are supposed to find out कि हमने यहाँ पर कितने lines को, कितने straight lines यहाँ पर use किए हैं। Options, I'll give you the options as well. So the options are 11, B option is 14, C option is 16, and D option children is 17. Please find it out. काउंट करो और फाइंड करके लेट मी नो। Shall we do it, children? Shall we count? Let's count it. Okay. So
this is 1, this is 2, this is 3, 4, 5, right? ये पूरे straight lines हमें दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5. Then this is 6, this one, then this is 7, right? ये वाला जो है ये 7. Then we have 8, which is this one, right? यहाँ पे 4 is this one, 5 is this one, straight line. Then this is 6. Then this is 7, 8, 9, 10, 11. Then this is 12, 13 and 14. It's going to be 1, 2, 3. It is asking minimum number. Minimum पूछ रहा है. So 1, 2, 3, 4, 5. Then it is going to be 1, 2, 3, 4, 5. Then 6, 7 and 8. 8, 9, 10. Then 11, 12, 13 and 14. Right? जो अंदर का बॉक्स है 11, 12, 13 and 14. So minimum number how many? 14 हो गए children. See, 1, 2, 3, 4, 5, right? Then 6, 7, then 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. Clear children? Minimum number पूछ रहे हैं. Minimum number are 14. नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग चिल्ड्रन कुछ फिगर काउंटिंग ही के क्वेश्चन ही कर रहे होंगे. दैट विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर NMTC प्राइमरी चिल्ड्रन. राइट? थैंक यू सो मच. बाय बाय. And yes, remember to use my code. Using AV Live, you can acquire 30% of discount. Thank you so much. Bye bye.